Assalamu alaikum everyone. Welcome to Jadid Anjuman Talim's JAT Arts, Science and Commerce College for Women. My name is Muniba Ansari from the Department of Botany. I cordially welcome you all. Here I am presenting you the first chapter from the FY BSc paper second semester first, which is plant morphology. This chapter is of 2 lectures in your syllabus. It has 2 units. First unit, that is 1.1, has to deal with introduction, definition, descriptive and interpretative morphology. The second unit, that is 1.2, has to deal with importance in identification, nomenclature, classification, phylogeny and plant breeding. In today's video, we will see the first unit and the contents of the first unit. First of all, we will discuss about the introduction. Let's start from the word morphology. What is meant by morphology? It is made up of two words. First word, that is morph, which means form, structure or shape. The second word, that is logos, that means study of. So basically morphology is nothing but the study of structure or form or shape of any organism or any creature that has a particular shape or structure. Just like if we talk about an apple or a rose plant or a banana, all of these have a particular shape or structure by which we can identify that this is an apple or a rose plant or a banana. Now, if we talk about the plant morphology, which we have to study in details. So, plant morphology is the study of structure or shape of a plant. It is also called phytomorphology. Why phytomorphology? Because phyto means plants. Wherever there is a prefix phyto is used, it means that there is something or some information related to plants. Now let's talk more about the plant morphology. Plant morphology is the most important branch of botany. Without proper understanding of plant morphology, you can't understand any branch of botany well. It is a field of its study that deals with the gross structure of plant organs. Gross structure of plants, you can say detailed, or you can say the description or explanation of the visible characters or structure, either the underground structures or aerial structures of plants. The study of plant is done with various aspects and angles. There are various different branches of botany where the plants are studied with different aspects. For example, when we deal with external morphology or the external characters, it is known as eudaimonia, or it is generally called as morphology. See, morphology we have seen earlier that it is study of structure, shape or form. It can be internal or external because there are different structures that are present internally as well. But generally or usually you can say mostly the word morphology referred to as the external morphology. Okay, now if we when we deal with the internal morphology or the characters, it is known as the anatomy. When we study the cell structure and function, it is known as cytology. If we deal with the function and metabolism, it is known as physiology.
The science of identification, nomenclature, and classification is known as taxonomy. Dealing with the hereditary characters, it is known as the genetics. Similarly, there are different other branches of botany dealing with plants such as horticulture, paleobotany, ecology, etc. All these branches of botany helps to understand plant life in great detail, and plant morphology is closely related to all the branches. Without studying or understanding plant morphology, you can't easily understand these aspects, or you can say these branches of botany. Morphology forms the basis of taxonomic descriptions and generally constitute the most important data in delimiting and mark out plant groups. So when we talk about taxonomic descriptions, it is largely dependent on the morphology. Either it is about identification or nomenclature or classification of plants or plant groups. By studying the morphology, we can constitute the most valuable or important data for taxonomic studies and for assembling or categorizing the plants in proper groups. The plant morphology includes the outward appearance, that is shape, structure, color or pattern or size, etc. That is the external appearance, or you can say eudaimonia or morphology, as well as the form and structure of internal parts, that is internal morphology, which is known as anatomy. जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो आउटवर्ड अपीयरेंस, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है उसको भी इंक्लूड करती है, और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एनाटॉमिकली हम पढ़ते हैं उसको भी प्लांट मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है. The external morphology deals with the external forms and their peculiarities. It describes the plant from the outside. जो external morphology है वो external form और उसकी peculiarities मतलब उसकी जो खासियत होती है, उसकी जो plants के structures होते हैं externally जो हम देख सकते हैं उसको define करती है, उससे deal करती है. It describes the plant from the outside. जो outside का appearance होता है plants का उसको deal करती है. The internal morphology deals with the internal structures of plants by taking fine sections, then studied under microscope. जो internal morphology होती है वो internal structures से deal करती है. हम internal structures कैसे देख सकते हैं? By taking fine sections, और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करके उसकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके जो शेप्स होते हैं, उसके जो फॉर्म्स होते हैं उसको हम स्टडी कर सकते हैं. So, plant morphology includes external as well as internal characters. Now we will see the definition. There are different kinds of definitions available. From those definitions, we will see few definitions. The first one is the study of physical form and external structures or internal characters of plants is called phytomorphology or plant morphology. जो फिजिकल फॉर्म होते हैं और जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम छू के महसूस कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स और इंटरनल कैरेक्टर्स जो होते हैं जो हम सेक्शंस लेके देख सकते हैं उसको उसकी जो स्टडी होती है उसको फाइटोमॉर्फोलॉजी और प्लांट मॉर्फोलॉजी कहते हैं. द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स सच एज जो लीव्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसका विनेशन किस तरह का होता है, लीव्स की मार्जिन किस तरह की होती है, लीव्स जो हैं वो इस स्टेम्स पे किस तरह का उसका अरेंजमेंट होता है, उसकी स्टडी, उसके रूट किस तरह के हैं, उसके सीड्स किस तरह के हैं, मोनोकोटिलीडोनस हैं या डाइकोटिलीडोनस हैं, उसके अलावा फ्रूट्स किस तरह के हैं, फ्रूट की कौन सी टाइप है, एंड फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है, फ्लोरल एक्सिस पे इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ये जो हो गए एक्सटर्नल कैरेक्टर्स. इंटरनली जो स्टोमेटा किस तरह का है और जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह के हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. जो स्टडीज़ होती हैं, वस्कुलर बंडल किस तरह के होते हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो इंटरनल कैरेक्टर्स हो गए. Now there is another definition, that is
Plant morphology or phytomorphology is the study of structure and form, development of plant in their individual and evolutionary historical development. डेवलपमेंट क्या होता है, जो इवोल्यूशन होता है या जिसकी ग्रोथ होती है प्लांट्स की फ्रॉम सीड टू द शूट, जो उसका पूरा कंप्लीट फॉर्म होता है, उसके दौरान जो उसकी फॉर्मेशन और ग्रोथ होती है उसको हम कहेंगे डेवलपमेंट। तो जो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, उसका फॉर्म किस तरह का होता है, और डेवलपमेंट में उसके फॉर्म्स में किस तरह का चेंजेस आते हैं, किस तरह के ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, उसकी जो स्टडी होती है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड होती है। अब देयर इंडिविजुअल एंड इवोल्यूशनरी, मतलब इंडिविजुअल जो ग्रोथ होती है, जो इवोल्यूशन होता है उसके अंदर, उसकी स्टडी भी, और एंड इवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट होता है, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो जो धीरे धीरे जो उसमें चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, और जो उसके मतलब वो प्लांट में अगर पहले के मुकाबले में कुछ अलग तरह के चेंजेस हैं, उनका जो एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप होता है किसी दूसरे प्लांट से, तो उसकी स्टडी भी प्लांट मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड की जाती है। उसकी मॉर्फोलॉजी को देख के वो कंक्लूड किया जाता है कि इसका इस पर्टिकुलर प्रीवियस प्लांट से रिलेशनशिप रहा है। ओके, नाउ द साइंस ऑफ मॉर्फोलॉजी हैज टू मेन अप्रोचेस. One of them is descriptive morphology. So, from the word descriptive, we can assume that it is explanatory or detailed. Okay. Now, in this approach, plants are described in botanical terms in greater details. जो प्लांट्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी में, वो बोटेनिकल टर्म्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किए जाते हैं, लाइक उसके एवरी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से उसका स्टडी किया जाता है बारीकी के साथ. इट इन्वॉल्व्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोमेटिक्स, एंड एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या आएगा, रूट हो गए, स्टेम्स हो गया, शूट बर्ड्स और लीव्स, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हो गए. एंड जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होता है. फ्लावर्स में जितने भी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं. वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्यों कहलाते हैं कि वो उससे उसमें रिप्रोडक्शन होके उससे फ्रूट फॉर्म होते हैं, मतलब कोई नई चीज़ फॉर्म होती है, न्यू क्रिएचर फॉर्म होता है. दे और उसके अलावा दे हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके ज़रिए न्यू क्रिएचर फॉर्म होता है, डेट इज़ फ्रूट्स फॉर्म होते हैं, सीड्स फॉर्म होते हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं. In descriptive morphology, all the plant's parts are described by considering the external and internal characters and their functions. जो डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी होती है उसमें जो प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को और उसके फंक्शन को कंसीडर करते हुए, सच एज फिजिकल कैरेक्टर्स और एनाटॉमिकल कैरेक्टर. फिजिकल कैरेक्टर्स जो हम आँखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको फिजिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे. और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स जो हम सेक्शंस लेके उसके सेल का जो स्ट्रक्चर्स स्टडी करेंगे उसको एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स बोलेंगे. दैट इज सेलुलर डिटेल एंड सेलुलर फंक्शंस इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज. जो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसका ग्रोथ होता है, किस तरह उसकी सीड्स की स्टेज से लेके उसके पूरे कंप्लीट प्लांट में ग्रो होने तक जो भी चेंजेस होते हैं उसको डेवलपमेंटल चेंजेस बोलेंगे. और उसके जो फर्टिलाइजेशन में उसके रिप्रोडक्शन के दौरान जो भी चेंजेस होते हैं उसको एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं. द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स कंप्राइज द शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स. जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वो बनाते हैं जो उसका शेप होता है, उसकी साइज होती है, स्ट्रक्चर होता है उसका, उसका जो बाहरी अपीयरेंस होता है उसको वो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स बनाते हैं. Broad description of a plant in nature or open field is taken as field note. जो
इसका डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स को जिस तरह से भी डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो अपने साथ इस तरह की जो भी स्टडीज़ होती हैं उसको एज ए फील्ड नोट्स लेकर जाते हैं जब प्लांट्स की स्टडी करने जाते हैं फील्ड्स पे, जो कि उनके लिए बहुत दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर टैक्सोनॉमिस्ट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं उनका काम ही होता है कि किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासीफाई करना, उसका नोमेनक्लेचर मतलब उसको नेमिंग, पर्टिकुलर नेम देना प्लांट को। तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं जो डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी इंडिकेट्स द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द प्लांट। जो प्लांट जिस तरह से भी बना होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो फ्रेमवर्क होता है, उसको इंडिकेट करते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉर्फोलॉजी इंडिविजुअली। Mostly general and very common description of plants without any quantification, comparison or any type of interpretation is given in descriptive morphology। जो बहुत ही जनरल टाइप के डिस्क्रिप्शंस होते हैं और वेरी कॉमन होते हैं, जो हम बहुत इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं, वो विदाउट एनी क्वांटिफिकेशन, मतलब किसी तरह का उसमें एनालाइज नहीं किया जाता है, उसका इवेल्युएशन नहीं किया जाता है, कोई तरह की लिमिटेशंस नहीं लगाई जाती हैं उसमें, और इंडिविजुअली किया जाता है। उसको किसी और प्लांट से, किसी प्लांट ग्रुप को दूसरे किसी प्लांट ग्रुप से कंपेयर नहीं किया जाता है, और एनी टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन मतलब किसी भी तरह का गुमान नहीं लगाया जाता है, उसको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है, उसमें डायग्नोसिस नहीं किया जाता है, कंपैरिजन यू कैन से नहीं किया जाता है किसी दूसरे प्लांट से या प्लांट ग्रुप से। नाउ द सेकंड अप्रोच, दैट इज इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी, or it is also called comparative morphology. What is interpretation? Interpretation is explaining something which is obscure or hidden. जो धुंधला और गैर वाज़े हो, उस चीज़ को explain करने को हम interpretation कहेंगे. It is an extension of descriptive morphology. Why it is an extension of descriptive morphology? Because the information or study we have done in descriptive morphology is involved in interpretative morphology, but in descriptive morphology it is the study of individual plants. There is no comparison between two plants or plant groups, but in interpretative morphology it involves comparisons and differences of morphological characters between two or more plants or plants group। जो दो और दो प्लांट्स और उनके जो दो और दो प्लांट ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट, उसके बीच में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का कंपैरिजन और उसका डिफरेंसेस को स्टडी किया जाता है। द कंपैरिजन इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। इस इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, वो इसीलिए स्टडी की जाती है टू फाइंड आउट, ये पता करने के लिए कि प्लांट्स ग्रुप में और प्लांट्स में जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं उसको स्टडी किया जाता है। दिस इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द फील्ड ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। नाउ व्हाट इज प्लांट टैक्सोनॉमी? इट इज आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट ग्रुप्स। तो इसके लिए कंपैरेटिव और इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं प्लांट ग्रुप को आइडेंटिफाई कर, प्लांट्स को और प्लांट ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनका नोमेनक्लेचर और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देयर क्लास फॉर देयर क्लासिफिकेशन ऑफ इन डिफरेंट plant groups. It is the study of morphological characters with interpretation of origin, development, phylogeny and growth pattern etc. इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी क्या है? ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की स्टडी है विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन। वो ओरिजिन, उनका ओरिजिन कैसे हुआ, डेवलपमेंट मतलब फ्रॉम द सीड टू द होल प्लांट बॉडी, मैच्योर प्लांट बॉडी, वो किस तरह से डेवलप हुए, उसमें किस तरह के चेंजेस आए, उसकी जो स्टडी होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो ग्रोथ होती है, उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। फाइलोजेनी,
It is the sequence of events involved in the evolutionary development of a species. जो species plants होते हैं या species होती हैं या plant group होते हैं, उसमें evolution जो होता है उसके जो different events होते हैं, sequence of events, और उसके जो stages होती हैं उसकी study को phylogeny कहेंगे. Now the growth pattern. What is growth pattern? तो the plants जब seed होते हैं वहाँ से उसका जर्मिनेशन होता है, वो सीडलिंग में डेवलप होते हैं, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद वो होल प्लांट बॉडी बनते हैं, उसमें फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन होता है, उसमें फ्रूट्स आते हैं, फिर उसका पॉलिनेशन होता है, फिर सीड्स बनते हैं, उसके बाद जो स्प्रेडिंग ऑफ सीड होती है, जितने भी इवेंट्स और इसमें आते हैं ये सब ग्रोथ पैटर्न में स्टडी किए जाते हैं. उस किस तरह से ये तमाम चीज़ें होती हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में ये सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती हैं. On the basis of knowledge of interpretative morphology, plants' origin and development are analyzed, correlated, and interpreted to their taxonomic groups to assume certain conclusions. On the basis of knowledge, जो interpretative morphology के नॉलेज मिलती है हमें, उसके बेसिस पे प्लांट ओरिजिन और डेवलपमेंट को एनालाइज किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है, उसका तज्जिया किया जाता है. कोरिलेटेड एंड इंटरप्रेटेड. कोरिलेशन मीन्स when two plants or two species are have similarities or differences, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, उनका किसी तरह का कोई कनेक्शन होता है, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्रीली रिलेट करते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी तौर पे रिलेट करते हैं. मतलब अगर एक प्लांट या प्लांट स्पेसीज पे किसी तरह का कोई चेंजेस होते हैं तो वो सिमिलर और अपोजिट रिएक्शन दोनों पे होता है, या तो सिमिलर रिएक्शन रिजल्ट होगा या रिएक्शन होगा, या अपोजिट चेंजेस होंगे प्लांट्स में. एंड इंटरप्रिटेड टू देयर टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स. उसको एनालाइज करके उसमें उसको पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में पुट किया जाता है और अज्यूम किया जाता है सर्टेन फॉर टू अज्यूम सर्टेन कंक्लूजन्स. मतलब एक पर्टिकुलर इसकी स्टडी का इंटरप्रिटेटिव मॉर्फोलॉजी की स्टडी करके सर्टेन कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये प्लांट इस पर्टिकुलर प्लांट ग्रुप में ही एडजस्ट होता है या इससे रिलेट करता है. For example, similarities and differences between certain morphological groups such as bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms indicates that the bryophytic group is given rise to primitive pteridophytes. For example, जो similarities और differences होती हैं morphological groups में, such as जो bryophytic group होता है, pteridophytic group होता है, gymnosperm है, angiosperm हो गए, वो indicate करते हैं कि हमें कि ब्रायोफाइट जो ग्रुप है वो गिवन राइज टू प्रिमिटिव टेडोफाइट्स, उससे प्रिमिटिव टेडोफाइट्स इवॉल्व हुए, क्योंकि ब्रायोफाइटिक ग्रुप में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, उसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो टेडोफाइट्स में पाए जाते हैं. टेडोफाइटिक ग्रुप के कुछ कैरेक्टर्स उसमें ऐसे पाए जाते हैं जिससे ये पता चलता है कि जो एकदम फर्स्ट और अर्लीस्ट काइंड ऑफ टेडोफाइट्स वजूद में आए थे तो वो ब्रायोफाइटिक ग्रुप से वजूद में आए थे. Similarly, some pteridophytes may be the ancestors of gymnosperm. जो कुछ टेरिडोफाइट्स हैं उसमें ऐसी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म्स की, जिससे ये पता चलता है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वो जिम्नोस्पर्म के एंसेस्टर्स हैं. मतलब जिम्नोस्पर्म है वो टेरिडोफाइटिक ग्रुप के कुछ प्लांट से इवॉल्व हुए हैं. The morphological similarities of Gymnosperm neatum helps us to interpret that the angiosperms has evolved from Natallian group which is known as Proangiosperm. जो morphological similarities जिम्नोस्पर्म ग्रुप का जो ग्रुप है निटेलियन ग्रुप, उसका जो प्लांट है नीटम, उससे पता चलता है कि जो एंजियोस्पर्म है वो निटेलियन ग्रुप के नीटम प्लांट से इवॉल्व हुए हैं, और जो निटेलियन ग्रुप है वो प्रो एंजियोस्पर्म कहलाता है बिकॉज क्योंकि जो एंजियोस्पर्म है वो इसी ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं. द फाइलोजेनेटिक इंटर रिलेशनशिप among different plant groups is explained on the basis of interpretative morphology. जो phylogenetic inter relationship होता है different plant group में, वो interpretative morphology के जो information है, जो knowledge है, उसकी basis पे explain किया जाता है.
So the first unit of first chapter of plant morphology is completed here. We will see the second unit in next video. Thank you for watching this video.